A very good afternoon, everyone. I hope you're all well. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Okay, there are others also joining. Let's wait for a moment and then we'll start off the class. I hope everyone is attentive, listening. So you all have your study material for CFN, right? We can't hear you, ma'am. You all have your study material for CFN. Can you hear me now? Yes, the voice is breaking, ma'am. Voice is breaking. Okay, Shubha, please can you mute Yes. yourself Okay. for a moment? Yeah. Okay. Now can you hear me? Now is it clearer than before? There is some issue happening once. Hanji, Antara, you want to say something? You've raised your hand. Now can you hear me? You could just give a thumbs up if I'm audible. Oops, there's a lot of disturbance. Okay. In case you're not able to hear me or something, please put up in the chat box. Or maybe if I'm audible, if you can hear me well, then also, so that will help me to start off the class. Yes, you're audible now, ma'am. Okay, perfect. There is some disturbance happening. SN1. Can you please mute yourself? Maybe you're trying to say something, but it's not clear. So maybe if there's any issue with the speaker or something, you're most welcome to use the chat box. Okay? And if there are any queries also meanwhile, you can use the chat box. So I just want to know that you all have your CFN material with you, is it? Yes, ma'am, I have. Okay. Fine. So I am Dr. Anku Malik this side, right? And I have been in the field of nutrition for past, I don't know, more than a decade and a half. So I usually take CFN classes, and I've done my master's and PhD from food and nutrition itself from Delhi University. Right. So quickly starting off with the class, um, I'll be sharing my screen. I have these small PDFs of your CFN study material, and so that would make it a little easier. Okay, I'm not able to share the screen. Um, RC Delhi, sir, are you there? Is someone there? Yes, ma'am. सर यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है सो मे बी वो सेटिंग्स में जब ये गूगल मीट की सेटिंग्स में होगा सो आप उसको एक्टिव कर सकते हो सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन हो गया मैम, कर दिया. अच्छा ठीक है थैंक यू ओके सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल So just to prepare you, I will be taking your CFN 1. Oops, Shubha, please mute yourself. I will be taking CFN 1 and CFN 1 has few blocks. It has about 4 blocks. So I'll be trying to cover half of the block in each class so that I'll try to go slow so that you all can understand आप सबको समझ में आए अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो you can type it out in the chat box या towards the end of the session जो भी मैंने आज कवर अप किया है तो उससे रिलेटेड डाउट्स हम एंड ऑफ द सेशन में लेंगे ठीक है
So this is just for a little brief. I am sharing my screen so that sometimes it's easier कि जो मैं बोल रही हूँ अगर कभी कभार हमारे सामने थोड़ा पॉइंटर्स या लिखा हुआ होता है सो हमें समझ में भी ज़्यादा बेटर आता है, right? So okay, so let's begin the class. So when we talk about food now, इंडिया में रहते हुए एंड हमारा खाना सब कुछ इतना इतना डाइवर्स है, राइट? आप थोड़े एक रीजन से दूसरे रीजन जाओ तो फिर खाना बिल्कुल, जो खाने का तरीका है, जो फूड यूज करते हैं वो बिल्कुल बदल जाता है, चेंज हो जाता है, राइट? एंड फूड इज समथिंग, फूड एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को हर एज ग्रुप में, छोटा हो या बड़ा हो, सबको चाहिए ही चाहिए फॉर सर्वाइवल। सो अगर हम जनरली बोले तो व्हाट इज फूड? फूड इज बेसिकली, फूड एक ऐसी चीज है, फूड इज समथिंग वी ईट, है ना? जो भी हम खाते हैं, जो भी एडिबल चीज होती है, एडिबल मतलब खाने लायक, उसको हम फूड कहते हैं, राइट? और जब हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन की, अब जो भी हम खाते हैं वो तो है फूड, जो भी एडिबल हो, खाने लायक चीज हो, जो हमें हमें एनर्जी दे, हमें प्रोटीन दे, हमें काम करने के लिए, जो हमें सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए चाहिए, उसको हम फूड कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो, जिस तरह से फूड हमारी बॉडी में यूटिलाइज, या जिस तरह से बॉडी हमारे उस फूड को ब्रेक डाउन करती है और उसको यूज करती है फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिविंग, वो बेसिकली उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, कोई भी रोटी या कोई भी सब्जी कुछ भी खाया तो पहले हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, है ना? उसको चबा के फिर हमारे फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे जाती है, जो डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट मतलब अब सबने ये प्रोटीन के बारे में सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुना होगा, विटामिन्स के बारे में सुना होगा, है ना? इनको हम कंपोनेंट्स, हमारे फूड, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो रोटी से मुझे क्या मिल रहा है? रोटी से मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, राइट? मेनली कार्बोहाइड्रेट, और भी चीजें मिलती है, मुझे कुछ विटामिन और ये सब भी मिलता है, बट वट एवर आई एम ईटिंग, रोटी हो गई मेरा फूड, बट अब वो रोटी किस तरह से बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट होके कार्बोहाइड्रेट बना रही है, फिर कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो रहा है, ब्लड से हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, हमारे लेग्स में भी जा रहा है, आर्म्स में भी जा रहा है, थ्रू आउट द बॉडी, हार्ट में जा रहा है, किडनीज में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, उसको एनर्जी और रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, और फिर जो भी बचा कुचा जो अनडाइजेस्टेड होता है वो बॉडी से निकल जाता है, एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं। सो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सो बेसिकली रोटी जो हुई, जो हम खा रहे हैं, वो फूड हुआ, और जिस तरह से रोटी बॉडी में ब्रेक हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, इसके न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहे हैं, बॉडी यूज कर रही है, जो एक्स्ट्रा उसको स्टोर कर रही है, जो नहीं चाहिए उसको निकाल रही है, एलिमिनेट कर रही है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट व्हेन वी से फूड एंड, तभी फूड एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड देन देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, लाइक व्हाट इज हेल्थ। अब अगर किसी से पूछे हेल्थ क्या है, आप हेल्दी हैं, हम कोई इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो देन वी से, द पर्सन विल से हाँ नहीं हम हेल्दी हैं। बट अब WHO के अकॉर्डिंगली पहले होता था सिर्फ फिजिकली दिखना कि हाँ मेरे हाथ पैर ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, बट नो, विद टाइम थिंग्स हैव रियली चेंज। अब सिर्फ फिजिकल वेलनेस को, हम फिजिकल हेल्थ को नहीं देखते, क्योंकि अब मेंटल इश्यूज भी इतने हो चुके हैं, दिस डिप्रेशन इश्यूज अगर हम बात करें, या अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, दीज आर कॉग्निटिव इश्यूज, ब्रेन से रिलेटेड है, मेंटल इश्यूज भी हैं, तो वो भी एक बीमारी में ही आ जाता है। सो WHO says that health, what is health? Health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely absence of disease। मतलब मुझे सिर्फ अगर डायबिटीज, या मुझे कोई कैंसर, या मुझे कोई हाइपरटेंशन नहीं है, तो भी हम अपने आप को पूरा हेल्थी नहीं कह सकते। हेल्थी तब कह सकते हैं जब हाँ हमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, हम मेंटली भी फिट है, वी डू नॉट हैव एनी साइकोलॉजिकल इश्यूज, वी डू नॉट हैव एनी डिप्रेशन इश्यूज, वी डू नॉट हैव एनी स्लीप इश्यूज,
है ना, वी डू नॉट हैव एनी एंजाइटी इश्यूज। और सोशली भी, ये नहीं कि हम अपने में ही, सोशल, बिकॉज हम कहते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन बींग्स, राइट। तो सोशली मतलब हम लोगों से मिलते हैं, हमें कोई, वी डू नॉट हैव एनी इशू एज सच। सो तब हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। सिर्फ बीमारियां ना होना, बीमारी होना मतलब एक फिजिकल हेल्थ, सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है वो हेल्थ का। सो वी नो व्हाट इज फूड नाउ, हमें पता है न्यूट्रिशन क्या है, हमें पता है हेल्थ क्या है, क्योंकि हमें फूड एंड न्यूट्रिशन चाहिए है टू रिमेन हेल्दी, हेल्दी फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, है ना। और जब भी हम फूड खाते हैं, मैंने क्या कहा था, जैसे हम अगर रोटी खा रही हूँ या मैं दाल रोटी खा रही हूँ, तो मुझे वो जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है एंड डाइजेस्ट हो रहा है इन साइंटिफिक टर्म्स। और उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे हमें मिल रहा है हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, जो हमें फूड देता है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आर अ वाटर, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यस, हम वाटर को भी एक न्यूट्रिएंट में मानते हैं, क्योंकि आप देखो ना, 70 से 75, 70 to 75% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारा ब्लड वाटर है, यूरिन वाटर है। सो हम हाउ कैन वी फॉरगेट वाटर। एंड वाटर के खुद के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, आगे हम एक एक करके इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, बट जस्ट एक ब्रीफ के तौर पे, वाटर हमारा सारे टॉक्सिन्स या वेस्ट को एलिमिनेट करता है यूरिन के फॉर्म में। हम वाटर, हमारा ब्लड जिसमें वाटर का कंपोनेंट इतना ज़्यादा है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वो एक ट्रक की तरह काम करता है, सामान या न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे लेके जाता है। वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कभी बहुत बहुत गर्मी हो तो ये बॉडी का एक तरीका है बताने का कि नहीं, बॉडी को पानी की ज़रूरत है, हमें प्यास लगती है, तो उससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसलिए वाटर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको भी हम एक न्यूट्रिएंट में ही मानते हैं। सो नाउ इसमें आई विल जस्ट गिव अ लिटिल ब्रीफ अगेन। इसमें बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो ये है, ये हमारे मेन 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसलिए इनको हम मैक्रो कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। सो मैक्रो का मतलब है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो। सो हमारे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। विटामिन में हमारे आ गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, बहुत सारे होते हैं। और मिनरल्स में हमारा बेसिकली आता है हमारा आयरन, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे मिनरल्स, आयोडीन, ये सब मिनरल्स में आते हैं। ये आगे भी डिटेल में एज वी प्रोसीड, मतलब आगे आगे जैसे चलेंगे तो इसके बारे में और पढ़ेंगे, ये आगे है, बट दिस वाज जस्ट टू गिव यू ब्रीफ। देन अब फूड, जैसे का फूड हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और फूड के अब अगर हम यहाँ वॉटेवर, अगर हम 20-25 लोग अभी हैं यहाँ, तो सबकी फूड के व्हाट दे लाइक या फूड हैबिट्स या जो भी हम खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं हम सबका बिल्कुल सेम हो, हम सबका अलग अलग होगा। आई एम श्योर अलग अलग, अगर अलग अलग प्लेसेस से हैं, सो इट विल बी वेरी डिफरेंट, राइट। सो देर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे फूड सिलेक्शन को। अब अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो चिकन, एग, फिश खाएगा, कोई वेजिटेरियन है जो बिल्कुल एग भी नहीं खाता तो वो ये सब नहीं खाएगा। तो यहाँ कल्चरल डिफरेंस आ गए। सो देर आर दीज सर्टेन फैक्टर्स, एंड मेन फैक्टर्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, लोकेशन, क्लाइमेट, वेदर, ये सब। अगर अब फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली अब तो थिंग्स ना, तो ट्रांसपोर्टेशन, फूड, नॉर्थ साउथ में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर मैं लोकेशन या क्लाइमेट का एग्जाम्पल दूँ, अब अगर नॉर्थ इंडिया में फॉर एग्जाम्पल पंजाब साइड जाओगे, वहाँ मक्की कितना खाया जाता है, क्योंकि वो ग्रो होता है, वो वहाँ का क्लाइमेट और लोकेशन तो अफेक्ट है, राइट।
वही अगर साउथ में जाओगे तो वहाँ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस, रेड राइस, फर्मेंटेड फूड, वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सो हमारी लोकेशन, क्लाइमेट, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो खाना मेरे एक्सेसिबिलिटी, जो खाने की चीज़ें मेरे आसपास ग्रो होती हैं या जो इजीली मिलेगी, तो मैं ज़्यादा वही खाऊंगी, मैं ज़्यादा प्रेफर वही करूंगी। So I'll explain this in detail also as we proceed, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे. So physiological factors, physiology means physical aspect, देखने में. So उसमें hunger, taste, aroma, ये सब चीज़ें हैं बहुत. अगर कोई चीज़ टेस्टी होगी तो हम उसको ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, हम खाना चाहेंगे. किसी कोई दिखने में अच्छी नहीं होगी तो हमारा मन ही नहीं करेगा उसको खाने का, right? Then there are also other factors, psychosocial factors हो गए, जैसे education, economics. अब अगर मुझे awareness है कि ये चीज़ एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है, if I'm educated enough कि मुझे पता है मेरे फायदे की है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी खाना. Economics is related to something, if what my pocket allows. इनकम बहुत एक मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कि क्या खाना मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगी या मैं लेना चाहूँगी या नहीं. कोई महंगी सब्जी है तो इफ आई कैन अफोर्ड इट तो आई विल टेक इट. अगर मैं नहीं अफोर्ड कर सकती तो मैं वो महंगी सब्जी या महंगी चीज़ नहीं लूँगी, आई विल गो फॉर अ चीपर थिंग, राइट. सो उसके बाद सोशो कल्चर में भी सुपरस्टिशन, रिलीजन, ये सब ट्रेडिशन, टैबूज, ये सब बहुत चीज़ें हैं. इनको हम जैसे जैसे अब आगे जाएंगे आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन. सबसे पहले हम वही बात करते हैं हमारे सोशो कल्चरल. जैसे मैंने बात की, हमारा जो फूड है, जो भी हम खा रहे हैं, वट एवर वी आर ईटिंग, राइट, इट रियली डिपेंड्स ऑन मैनी फॉर द ट्रेडिशनल. जो हमारा ट्रेडिशन है खाने का, हम वही फॉलो कर. जो हमारे पेरेंट्स ने खाया, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने खाया, तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम वही ट्रेडिशन, वही फैक्टर फॉलो करने लग जाते हैं, right? So then we come on to now specific, I'll be talking, like I said, I'll be talking about specific factor one by one. तो now the first heading कह लो, सबसे पहले जो सबसे मेन फैक्टर जो है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, जो हमारे खाने के एक्सेप्टेंस को इफेक्ट करता है. मतलब क्या हम एक खाना खाना चाहेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको खाते हैं या नहीं खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज हंगर. नाउ ऑब्वियसली दैट इज अ मेन फैक्टर. समटाइम्स व्हेन वी आर हंग्री, कभी कभार बहुत भूख लगे, तो अगर कोई चीज़ नॉर्मली भी खाने में अगर अच्छी ना लगे फिर भी हम खा लेंगे. सपोजिंगली अ पर्सन who does not like having घिया, टिंडे, तोरी ज़्यादा खाने को खाता हो कोई इंसान, लेकिन पर इतना खुश होके ना खाता हो या इतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन जिस दिन बहुत भूख लगेगी तो उस दिन वो भी खाया जाएगा. सो दिस इज व्हाट इट बेसिकली मीन्स, दैट हंगर इज अ वेरी मेन बिग फैक्टर कि हम किसी खाने को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. देन कम्स योर सेंसेशन प्रोड्यूस बाय फूड. सेंसेशन मीन्स उसका बेसिकली क्या टेक्सचर है, देखने में कैसा है ना, उसका अरोमा, क्या अच्छी खुशबू आ रही है या नहीं आ रही, उसका टेस्ट कैसा है. ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं. कोई खाना जिसका अच्छी खुशबू आ रही हो, घर में कुछ बन रहा हो, एंड व्हेन वी कैन स्मेल द अरोमा, तो फिर हमारे ऑटोमेटिकली भूख लगने लग जाएगी, है ना. एंड एट टाइम्स व्हेन समथिंग इज cooked which does not have a very good nice aroma, अच्छी खुशबू, nice smell नहीं है, we would not like to eat them, so we will reject that food, we will not accept that food. Also at the same time, the texture is very important. Like somebody might like, किसी को crispy खाना ये सब ज़्यादा अच्छा लगेगा. अब वही एक अगर कोई old age elderly person हो, कोई somebody old, तो ही माइट, अगर उसको कोई डेंटल इशू हो तो ही माइट नॉट वांट टू हैव वेरी क्रिस्पी टेक्सचर, उसको सॉफ्ट खाना एक्सेप्ट करेगा, वो खाना अच्छा लगेगा. द सेम गोज समटाइम्स बच्चों को होता है कि ज़्यादा गर्म खाना नहीं हो, राइट. सो टेम्परेचर इज ऑल्सो अनदर फैक्टर. पर अडल्ट को होता है नहीं, गरम गरम खाना मिले, गरम गरम खाने में मजा आता है. सो दीज आर डिफरेंट सेंसेशंस प्रोड्यूस बाय फूड, जिसपे हमारा फूड एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन डिपेंड करता है. Then like I told you about age में जैसे बताया कि adults को या elderly might like soft foods, children might like crispy food, और at the same time चाय कॉफ़ी, हम adults addicted भी होते हैं कि चाय कॉफ़ी के बिना दिन शुरू नहीं होता है. So some people prefer to have tea and coffee is mostly preferred by old people.
लेकिन बच्चों को ज़्यादा मीठा, आइसक्रीम, ये सब बच्चों में ज़्यादा चलता है। सो एज इज़ अनदर फैक्टर जिससे हम फूड एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। सो ये हमारे हो गए फिजियोलॉजिकल, मतलब रिलेटेड टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द फूड, ठीक है। अब दूसरा आ गया हमारा सोशो कल्चरल फैक्टर, मतलब सोशल और जहाँ कल्चर इंक्लूड हो, ठीक है। जैसे हमारा जो भी हमारा कल्चर है, ऑब्वियसली कल्चर इज द मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर, है ना, कि हम वो खाने को हमारा खाना कैसा होगा, हम क्या खाना एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हियर अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल दैट आई गिव इज कि अब धीरे धीरे सी हमारे इन आर एज वी आर हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, एंड अब इन मेनी हाउसेज द वुमेन ऑफ द हाउस इज ऑल्सो वर्किंग, है ना। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, अगर वर्किंग कल्चर ज़्यादा आ रहा है, तो फिर अब क्या होगा, इफ द वाइफ हैज टू गो एंड वर्क, अगर सुबह सुबह दोनों ने काम पे जाना है, तो नाश्ता कैसा बनेगा, एक क्विक नाश्ता, क्विक ब्रेकफास्ट बनेगा, है ना, कि बस खाया एंड निकल गए। बट वही इफ यू नो देयर वर्किंग स्केड्यूल ऐसा नहीं है, right, so then a person can have normal breakfast, healthy breakfast, a lavish breakfast. So obviously work timings, work culture play a very important role कि हम कौन सा खाना, हमारे डाइटरी हैबिट्स क्या होंगे, कौन सा खाना हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा खाना हम रिजेक्ट करेंगे। Then there are social values and religious and moral values also attached to the food, which play a very important role. A simple example religious and moral values का तो हो गया। अब अगर if somebody is following Jainism, so they will not like to have onion and garlic, right? So the same goes, like Hindus, they do not prefer to have beef, right? And at the same time, Muslims they do not prefer to have pork. So this is as per their religious beliefs. Also, there is some social value attached to the food. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने किसी पार्टी पे जाना है, किसी ओकेजन पे जाना है, कहीं बाहर है, तो फिर जो हम खाना होगा वो ज़्यादा फैंसी होगा, ज़्यादा लैविश होगा। अब सिंपल, आप कहीं बाहर शादी पे कहीं जाते हो, यू माइट हैव शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, क्या फैंसी फैंसी सब डिजर्ट सब मिलेगा, मीठा सब मिलेगा, राइट। वो जो नॉर्मल उसमें नहीं कंज्यूम होता। द मोर फैंसियर द फूड, मोर सोशल वैल्यूज अटैच टू इट। सो सिमिलरली इफ sometimes we say agar these dry fruits and all, they are considered, there's some social value also attached to it. So it is supposed to be considered very costly, but at the same time अगर आप बेसिक सब्जी आप बात करो, पीनट्स को हम क्या मानते हैं, पीनट्स को एक पुअर मैन फूड मानते हैं, बिकॉज वी फील इट इज वेरी चीप, right? So there are some social values also attached to food, and food is used as a way to socialize. कहीं पे भी हम जाते हैं, कहीं पे ओकेजन पे कहीं भी हम बाहर जाते हैं, तो अब अगर एक सिंपल थिंग बहुत बार होता है, शादी पे कहीं जाओ तो शादी अच्छी कब लगेगी, जब उसका खाना अच्छा होगा। एंड समटाइम्स वी लेबल इट कि शादी अच्छी नहीं थी, क्यों, क्योंकि खाना अच्छा नहीं था, right? So there is a lot of social value also attached to the food. Then comes the psychosocial factors, psychological factors. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब जब एक बच्चा बॉर्न होता है, देन द चाइल्ड इज ब्रेस्ट फेड, राइट। तो बच्चे के लिए मिल्क किससे रिलेटेड होगा, मिल्क की जो मेमोरी होगी वो रिलेटेड होगी टू वार्मथ, टू लव, क्योंकि एक जो बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले उसको फीड क्या देते हैं, मदर्स मिल्क देते हैं। सो So there is some psychological factor. So whenever a child maybe if he likes to drink milk, and if that, so that particular food, that milk particularly, उसको जब भी बच्चे को एक पर्टिकुलर लव हो जाएगा एक दूध से, क्योंकि वो दूध क्या कर रहा है, उसको रिमाइंड करा रहा है ऑफ द मदर्स केयर, when the child was small. तो इसीलिए it has a psychological role to play. And many a times अब बहुत बार अगर गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खाने को रिजेक्ट कर देते हैं। वाई? सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल, हमारी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उस टाइम, उस पर भी डिपेंड करता है हम किस खाने को एक्सेप्ट करेंगे, किस खाने को रिजेक्ट करेंगे। जब बीमार होते हैं तो ऑब्वियसली तो हमें एक पर्टिकुलर टाइप का खाना, कुछ भी नॉर्मल अगर दाल रोटी सब्जी भी लाओगे तब भी शायद खाने को ना मन करे, तब भी शायद खाना वो नहीं अच्छा लगे। So these are the factors that affect our food acceptance or rejection,
right? So I'll just go on to the main parts only. Then like I said, हमारे क्या है, अब इसी चीज को ही इट इज जस्ट द वे जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन या फ्रेम किया हुआ है। अब ये थे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारे फूड एक्सेप्टेंस को, ठीक है। अब जो हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं सिर्फ, नॉर्मली पूछा जाए तो क्यों खाते हैं, पेट भरने के लिए, है ना। बट सिर्फ पेट भरने का वो नहीं होता, सिर्फ फूड का, मेरा मतलब फूड का फंक्शन सिर्फ पेट भरना नहीं होता। ऑब्वियसली पेट भरना टू गिव दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, साइकोलॉजिकल, सोशल और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो फूड प्ले करता है। सो दिस इज अ लिटिल ओवरलैपिंग, थोड़ा ओवरलैपिंग है टू जो अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जो मैंने, जो था आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एक्सेप्टेंस। तो ये फंक्शंस थोड़ा उससे ओवरलैप करेगा, बट इट जस्ट द मैटर द वे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट। जो आप लैंग्वेज यूज करोगे दोनों को आंसर करने में, वो थोड़ा डिफरेंट है, दो कुछ टॉपिक्स ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले जो मेन फंक्शन हम फूड के अगर शुरू करें, नाउ वी नो फूड हमें हर ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमें कभी कभार साइकोलॉजिकल फंक्शन या सोशल फंक्शन के लिए भी होता है। कभी कभार क्या होता है, हम अपने किसी फ्रेंड से मिलना हो या किसी से मिलना हो तो हम क्या कहते हैं, चलो लेट्स मीट ओवर कॉफी, कॉफी पे मिलते हैं, या अच्छा आज आप हमारे घर आ जाओ खाने पे मिलते हैं। तो सोशलाइज करने का भी तो तरीका है food, right? So food has many functions. When we talk about the first function, अब उसको, ये जो functions हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। 3 कैटेगरीज भी वही है, फिजियोलॉजिकल, जहां फिजियो आ जाए, मैंने कहा ना फिजियो मतलब फिजिकल फंक्शंस, साइकोलॉजिकल, साइको मतलब हमारे रिलेटेड टू आवर ब्रेन, मेंटल एक्टिविटी, सोशल मतलब ऑब्वियसली सोशलाइज करना, मिलना जुलना। सो फूड के जो 3 मेन क्लासेस हैं, 3 मेन फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। अब अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल, जो फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो बॉडी की, इसको हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया मतलब, या 3 फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो फूड के हैं वो है हमारा एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, राइट। सो मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, एनर्जी गिविंग, खाना जब हम खाते हैं हमें एनर्जी देता है ना, तो इसलिए उसको एनर्जी गिविंग कहते हैं। क्योंकि अब अगर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इन सब में बॉडी को एनर्जी चाहिए ही चाहिए, है ना। सो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, राइट। अब जो हमारे फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं, या जो हम उठते, बैठते, खेलते, कूदते, सोते, जागते, ये जो हम करते हैं, ये बेसिकली इन एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। एक होता है वॉलंटरी एक्टिविटीज, वॉलंटरी मतलब जो मैं अपनी मर्जी से कर लूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, राइट, ये वॉलंटरी है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग, आई एम रनिंग, आई एम क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, आई एम कमिंग डाउन द स्टेयर्स, मैं योगा कर रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। व्हाट आर ऑल दीज, ये हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं। और कुछ एक्टिविटीज होती है जो इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी मतलब जो जिसमें वो हो रही है, बस मेरी, ऐसा नहीं है मेरी मर्जी से मैं अब रोक सकती हूँ या उसको चला सकती हूँ, नहीं। सपोजिटली हम सो रहे हैं, सोते सोते ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। इन सब चीजों के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ना। पर ये क्या होती है, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं जो पूरी हमारे हाथ में नहीं होती, दे आर जस्ट गोइंग ऑन इन द बॉडी। सो जो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज हम जो डिवाइड करते हैं वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। आई विल जस्ट पुट अप वॉलंटरी, आई एम जस्ट स्पेलिंग्स में चैट बॉक्स में डाल दी, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। वॉलंटरी मतलब सिंपल ऊपर नीचे भागना, दौड़ना, खड़े होना, वो वॉलंटरी है। सो हमें एनर्जी चाहिए ये सब काम करने के लिए। ये कहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी, हमें अपने
फूड से एनर्जी मिलेगी. सो फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. एंड फूड में मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इफ यू रिमेम्बर अभी मैंने बताया था कि जो हम खाना खाते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना. जैसे सपोजिटली समझो आप एक कमरा है, कमरे में कमरा एक या घर एक किससे बनता है, एक सपोजिंगली घर है, घर में अलग अलग कमरे हैं, है ना. तो घर हो गया हमारा फूड और कमरे क्या हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स. वन रूम इज कार्बोहाइड्रेट, वन रूम इज प्रोटीन, राइट. तो सेम वे द फूड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और इन न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स इसमें डिवाइड करते हैं. एंड तो बेसिकली कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो ये एनर्जी का रोल प्ले करते हैं, एनर्जी देते हैं, वो हमारे फैट्स हो गए, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. मेन सोर्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसका काम ही क्या है, एनर्जी देना. उसके बाद फैट्स और उसके बाद हमारा प्रोटीन होता है. ये सब हमें एनर्जी गिविंग का, ये सब एनर्जी देने का काम करते हैं हमारी बॉडी में. So mainly it is carbohydrates and fats. प्रोटीन्स का मेन रोल क्या होता है, प्रोटीन का मेन रोल होता है हमें बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए, रिपेयर के लिए. ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं खाएंगे तो बेचारे प्रोटीन अपना काम छोड़ के बॉडी बिल्डिंग का तो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं. इसलिए खाने में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारा ही जरूरी है. ठीक है. देन देयर इज समथिंग नोन एज kilocalories. Now kilocalories is basically a unit how we measure the energy. Okay, so by theory it is just the amount of heat required to raise the temperature of 1 liter of water by 1 degree. मतलब कितना heat produce हो रहा है. ठीक है, कि वो टेम्परेचर, ये दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल डेफिनेशन. ये बस ऑन पेपर ये डेफिनेशन होती है कि जितनी हीट हमें 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर 1 लीटर ऑफ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए चाहिए, उसको हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं. सो बट व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर इज कि कितने हमें ग्राम्स, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितना कैलोरीज देता है, 1 ग्राम ऑफ फैट हमें कितना कैलोरीज देता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें कितना कैलोरीज देता है. एंड लाइक आई सेड, वी ऑल नो कि ज़्यादा फ्राइड खाओगे, ज़्यादा तेल खाओगे, ज़्यादा फैट खाओगे तो कहते हैं ना बहुत एनर्जी डेंस होते हैं, जल्दी ज़्यादा मोटे हो जाओगे. सो दैट इज बिकॉज फैट हमें सबसे मैक्सिमम कैलोरीज देता है. इमेजिन यू आर जस्ट हैविंग 1 ग्राम ऑफ फैट, तो आपको 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरीज देगा. पर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज देगा. ठीक है. सो इफ यू जस्ट let me just give you an example here. Now that 1 gram, I'm typing out in the chat box, 1 gram of fat gives me 9 kilocalories. ठीक है. अब अगर मैं 1 चम्मच 1 टीस्पून ऑफ ऑयल ले रही हूँ, ठीक है, 1 टीस्पून ऑफ ऑयल कितना होता है, अगर स्टैंडर्ड हम ये यूज करते हैं कि 1 चम्मच क्या होता है, 5 ग्राम. ठीक है. तो अब आई वॉन्ट यू टू ऑल टू पुट अप इन द चैट बॉक्स ओनली कि अब मुझे बताओ कि ये जो 1 टीस्पून ऑफ ऑयल है ना, वो मुझे कितनी किलो कैलोरीज देगा. परफेक्ट, 45 किलो कैलोरीज, राइट. बिकॉज आई नो दैट 1 ग्राम गिव्स मी 9 किलो कैलोरीज एंड तो 1 टीस्पून ऑफ ऑयल 5 ग्राम होता है, तो 5 into 9 gives me 45 किलो कैलोरीज. यस. अब अगर मैं बात करूं कि 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 टीस्पून ऑफ शुगर मुझे कितनी किलो कैलोरीज देगा. ओके, नाउ हियर लेट मी टेल यू. अब 1 टीस्पून ऑफ शुगर क्या है, 1 टीस्पून हमारा क्या होता है, 5 ग्राम, है ना. 1 टीस्पून इज 5 ग्राम्स चीनी. यस, इट विल गिव 20 किलो कैलोरीज. Perfect. Yes. So I hope everybody knows how it will give 20 kilocalories. Perfect reply in the chat box. So this was, हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पहले एनर्जी गिविंग का पढ़ा. अब हम जिसमें हमारे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है. ठीक है. उसके बाद अब हम आ गए हमारे बॉडी बिल्डिंग फंक्शन पे. अब बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, हमें खाना चाहिए है
ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, राइट। हर दिन हर सेल्स के एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद वो डाई करके न्यू फिर सेल्स बनते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। तो खाने के लिए मेनली प्रोटीन, ऑब्वियसली अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल, बट मेनली हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन चाहिए होता है। सो अब बच्चा कितना छोटा सा बॉर्न होता है, धीरे धीरे विद टाइम हम अडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड एज होती है, राइट। सो वी आर ग्रोइंग, सो दिस इज ग्रोथ, फॉर दिस वी नीड फूड एंड मेनली वी नीड आर प्रोटीन्स, करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। बहुत बार रिपेयर, इफ एनीबडी सीन, हमें अगर हमारे हाथ पे चोट लगती है, ऑब्वियसली स्किन डैमेज होती है, बट कुछ टाइम के बाद वो चोट खुद ही हील हो जाती है, right? Because our skin is what? Skin is mainly made up of protein. So if you're having good protein, good amount of और बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हीलिंग उतनी ही जल्दी होगी। तो इसको हम रिपेयर कहते हैं, राइट। सो वी नीड प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, वी नीड प्रोटीन्स फॉर रिपेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, व्हाट अदर न्यूट्रिएंट्स आर मेनली इंपॉर्टेंट आर योर मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोन फॉर्मेशन की बात करें तो हमें कैल्शियम चाहिए ना, है ना, हमें फॉस्फोरस भी चाहिए है। सो वी नीड मिनरल्स एंड यस, ऑब्वियसली वी नीड वाटर एज वेल। लाइक आई सेड, वाटर इज वन थिंग जो जिसको हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर पानी पीना उतना ही जरूरी है जितना आपका खाना खाना है, राइट। बिकॉज ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन देम। और अगर कुछ सेल्स डाई करके न्यू सेल्स बनते हैं तो उनको प्रोटीन, मिनरल्स ये सब चाहिए, तो साथ में वाटर भी तो चाहिए होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर which is required for our body building. So हमारा यहाँ क्या था, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में एनर्जी गिविंग था, बॉडी बिल्डिंग था। अब हम लास्ट पे आगे जो हमारा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी प्रोसेसेस। इसमें मेन क्या आते हैं हमारे, इसमें भी प्रोटीन की जरूरत है, यस। अब इसमें हमारे बेसिकली विटामिन और मिनरल्स आर द मेन दैट वी गिव इम्पोर्टेंस टू। नाउ सी, देर आर सर्टन, हमारी बॉडी में हर दिन अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं। इट इज सोचा जाए तो क्या है, हम रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो रोटी कैसे तोड़ के ब्रेक होकर हमारे मुंह से, हमारी फूड पाइप से, हमारे स्टमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, एंड कहाँ पूरा डाइजेस्ट होके न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जा रहे हैं, फिर ब्लड से हर पार्ट में जा रहे हैं, है ना। तो इन सब प्रोसेस के लिए हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। एंजाइम्स दे आर बेसिकली लाइक हेल्पर्स, दैट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेस जो हो रहे हैं बॉडी में। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। तो इसीलिए डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को करने के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। So different enzymes, जैसे मेरे example here, what is given here is pepsin, renin, trypsin। जैसे ये different enzymes होते हैं, like pepsin हमारे stomach में होता है, that helps in digestion। So all these, they are like helpers that bring about a reaction. So their role is more like a, जैसे आपके इसमें लिखा हुआ, the role is more like a catalyst। Catalyst होता है जो reaction को speeden up करने में help करता है, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी प्रोसेसेस, हमारे सांस लेना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए हमें ये एंजाइम्स चाहिए होते हैं, विच आर मेनली प्रोटीन्स। बट इन एंजाइम्स, ये एंजाइम्स बने तो प्रोटीन से हुए हैं, लेकिन इनको भी फंक्शन करने के लिए हमें और कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल बी विटामिन्स। अब जितने भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन होते हैं, द रिएक्शन दैट हेल्प टू रिलीज एनर्जी, उनके लिए बी विटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे B1 हो गया, हमारा थायमिन जिसको कहते हैं, हमारा नाइसिन भी हो गया जिसको हम B3 कहते हैं। सो ये तभी बहुत बार जब कभी वीकनेस हो, एनर्जी कम हो, तो बहुत बार डॉक्टर से कहते हैं आप बी कॉम्प्लेक्स ले लो या बी कैप्सूल ले लो, है ना। बिकॉज दैट हेल्प्स, दीज बी विटामिन्स दे हेल्प इन to speeden up the processes that are particularly जो energy metabolism में involved होते हैं। एंड यस, वाटर आई टोल्ड यू, ऑब्वियसली जैसे वाटर का मेन रोल क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। वाटर का मेन रोल क्या है, टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एंड सर्टन एंड these antibodies also
दे आर ऑल्सो मेनली प्रोटीन इन नेचर। अब हमारे बॉडी में जब कभी कोई इन्फेक्शन या कुछ होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस घुस जाता है, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो क्या कुछ सोल्जर्स रिलीज करता है, जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। दे हेल्प टू fight the infection, and these antibodies are also nothing but they are protein in nature, so that is why we require protein, and obviously साथ में हमें कुछ विटामिन सी, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, दूसरे भी विटामिन चाहिए होते हैं for bringing about the reactions and for fighting the infections. सो इसीलिए हमारी जो बॉडी प्रोसेसेस और रेगुलेशन में इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है टू प्ले। So this was only the physiological function of food. अब फिजियोलॉजिकल के बाद एक साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शन भी है फूड का। साइकोलॉजिकल फंक्शंस मतलब फूड व्हेन इट इज यूज्ड टू गिव हैप्पीनेस, टू शो हैप्पीनेस, टू शो प्लेजर, राइट, और इवन टू शो सैडनेस। अब बच्चे का अ चाइल्ड हु स्कोर्ड वेरी वेल, अगर किसी बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो हम क्या करते हैं, चलो आज तो आइसक्रीम खाए और चलो वी नीड टू सेलिब्रेट दिस, लेट्स गो आउट सम, डिनर करते हैं, किसी को घर पे बुलाते हैं, ज्यादातर यही होता है। तो खाना क्या होगा, या बच्चे को चॉकलेट दे दी, कुछ अच्छा किया, या कुछ नॉर्मली भी होता है, बर्थडे है या कुछ है तो चलो समटाइम्स चॉकलेट और आइसक्रीम और स्वीट इज गिवन, दैट इज अ वे टू शो लव, right? So food also has a psychological function to play. कभी कभार बहुत गुस्सा होते हैं तो भी गुस्सा होके क्या होता है, खाना नहीं खाना, है ना, या जब द डे द मदर इज हैप्पी, शील कुक द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड, कि नहीं भाई आज कुछ अच्छा बनाते हैं। जिस दिन मूड खराब होगा तो उस दिन कुछ ऐसा नॉर्मल सा ही बनेगा। So that's a way to show, that's related to the psychological function. Food also helps us to show our love या anger. दूसरा आ गया सोशल फंक्शन। अब फूड का सोशल फंक्शन भी है। सोशल फंक्शन में हो गया, जैसे मैंने बताया, सोशलाइज करने के लिए, है ना, मिलने जुलने के लिए। अब अगर कोई मुझे बर्थडे पार्टी करनी है, मेरा बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, कुछ भी, तो क्या होगा, चलो और सबको घर बुला लिया या बाहर चले गए, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, पार्टी कर ली, मतलब एक तरह से कुछ अच्छा खा पी लिया, है ना। तो ये एक तरह से फूड को हम सोशलाइज करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, कुछ है, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा चाय पे आ जाओ, चाय पिया, हम किसी के घर चले जाते हैं, किसी को बुला लेते हैं। वैसे ही अब अगर कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल में हम खाने पीने की चीजें एक्सचेंज करते हैं, तो फूड हैज अ सोशल फंक्शन आल्सो अटैच्ड टू इट, राइट। सो ओके, टिल नाउ एनीथिंग ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? मैम साइकोसोशल, The psychosocial function of food? factor. Psychosocial factors that affect our this thing. You're talking about food acceptance, right? Okay. Yes, ma'am. See, psychosocial basically means how, अगर एक food, for example, कोई food जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी memory जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उस फूड को आप हमेशा, आप उसको अपने खाने में उसको आप लोगे। मतलब अगर ये खाना मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, मेरा बचपन उससे जुड़ा हुआ है, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज उससे जुड़ी हुई हैं, right? So whenever I'm having that food, that will obviously relate me or connect me to that good memory, है ना, वो जो पहले की है। तो इसीलिए जो हमारे साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल फैक्टर, इसी को ही कहते हैं। इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे, इस परफेक्ट एग्जाम्पल को, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो तो अगर एक पर्टिकुलर फूड जो मेरी अच्छी यादों या मेरे बचपन की यादें या कुछ गुड मेमोरीज, ओके, आई दिस वाज अ वन प्लेस जहां मैं जाके हमेशा बचपन में, हम फ्रेंड्स या थे जो हमेशा खाते थे, और हम कोई भी एक पर्टिकुलर फूड जो हम ऑर्डर करते थे, वो फूड आपका एक मेमोरी में रह जाता है। तो हर बार जब भी आप जाओगे वहां, आप वो एक पर्टिकुलर चीज हम बहुत बार ऑर्डर करते हैं, है ना। सो दैट इज बेसिकली हाउ द साइकोसोशल फैक्टर, हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करता है हमारे फूड एक्सेप्टेंस पे, या हम उस फूड को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे।
ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है that you know like what your book, the examples that your book have given you, that many a times हम किसी खाने को रिफ्यूज कर देते हैं, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना साइको सोशल फैक्टर्स, इट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, क्योंकि हम किसी से गुस्सा है तो हम कहेंगे नहीं, खाना ही नहीं खाना, है ना, तो हम वो खाने को रिजेक्ट कर देंगे, हम वो खाने को नहीं खाएंगे। सो हाउ आर साइक, हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग, हमारा हमारा ब्रेन फंक्शनिंग, या क्या फीलिंग्स उससे उस टाइम हम फील कर रहे हैं, उससे भी हम उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस खाने को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। सो साइको सोशल फैक्टर हो गया ना, जो इन्फ्लुएंस करेगा कि मैं खाना, कोई पर्टिकुलर फूड को एक्सेप्ट करूंगी, उसको खाना अपनी डेली डाइट में रखूंगी, या उसको उस टाइम खाऊंगी, या उसको नहीं खाऊंगी। Okay. Is that clear? Better than before? Clarity मिली? Yes. Yes. Okay. Any other question? और कोई question? Okay. नहीं. Fine. Just give me a moment. Let me just have a glass of water. Just give me a moment, please. Okay. Yes. Shall we continue? I have one question. Yes, please. At the end of every chapter, we are being given the answers for the questions asked in the supplement. So during the assignments, when the question is asked, so we are supposed to write the model answer, the length of the answer copy that they have given, or it's like we have to write on our own the summary and everything in detail. So what? You are talking about, एक minute, I sorry, but I did not get your question. आपका क्या मतलब है? The questions that are given in the assignment. नो नॉट असाइनमेंट, ये जो हमारे यूनिट 1 यूनिट 2 ये सप्लीमेंट में जो नोट्स है उसके एंड में जो आंसर मॉडल दिए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसे दिए हुए हैं? यस, ये जो इसके जो मॉडल आंसर्स पीछे दिए हैं एट द एंड ऑफ द शीट, ओके, वो उसकी जो लेंथ ऑफ द आंसर जो है ना वो बहुत शॉर्ट है, तो नहीं, असाइनमेंट्स में जब पूछते हैं I would नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करो। सी, Yes. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। हम जब लिखते हैं हम 100% लिखते हैं, है ना, Yes. और फिर जब हम याद करते हैं 80% याद होता है, और जब एग्जाम में लिखते हैं तो हमेशा 70% ही लिख पाते हैं। यू नो इट्स देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो यस, ऑब्वियसली व्हाई नॉट, व्हेन यू आर मेकिंग अपनी असाइनमेंट बना रहे हो तो थोड़ा जितना, इट विल ऑल्सो शो योर नॉलेज, एंड यू नो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी जब आप पढ़ के, जब आप लिखोगे, एंड लेटर ऑन यू नो व्हेन यू प्रिपेयरिंग, तब आपके असाइनमेंट्स जो आपने करी होंगी, तो एक तरह से प्रिपरेशन भी करता है। तो थोड़ा इलैबोरेट एंड मटेरियल आपके पास अंदर भी जो अंदर दिया हुआ है वो काफी अच्छा दिया हुआ है, उसमें अगर एक दो और एग्जांपल्स देना चाहो, यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ओके, या थैंक यू, कंक्रीट आंसर बनाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। Okay, so shall we proceed with the macronutrients? Okay, so अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक I had discussed about what the different functions of food are and the factors that affect, you know, our food acceptance. What is food? What is nutrition? हमने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के नाम करे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, मतलब जिनसे फूड बनता है या फूड के जो अंदर होते हैं, है ना। फूड हमारा क्या होगा? एक फ्लोर हमारा, एक घर हमारा फूड हो गया, और जो उसके अंदर के कमरे हो गए वो हमारे क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए। एंड लाइक आई सेड, न्यूट्रिएंट्स में कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो कौन से होते हैं? जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो कौन से होते हैं? जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। एंड दिस इज व्हाट इन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो लार्जर अमाउंट हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स हो गए, और विटामिन मिनरल्स हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
ठीक है। एंड विटामिन मिनरल्स में जैसे आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, comes are vitamin A, B, C, D, E, K, राइट। ये सारे हमारे हमारे विटामिन होते हैं, और इनमें भी बी विटामिन तो बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तभी बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कभी सी कॉम्प्लेक्स या डी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, हमेशा बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि बी भी आगे बहुत टाइप के होते हैं, वो एज वी प्रोसीड वी विल स्टडी दैट। ठीक है। सो ये हमारे सारे विटामिन हो गए। नाउ I'll be talking about the functions of different nutrients. अब जैसे बताया कि एनर्जी के लिए मेनली कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फैट्स चाहिए होता है ना, प्रोटीन्स का अपना रोल है, विटामिन मिनरल्स का अपना रोल है। तो अब अगर हम इन सब के मेन अब बात करें, अगर हम इन सबको नाउ विल बी डिस्कसिंग देम ईच सेपरेटली। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी इंडियन डाइट में जो मेन बल्क है, जो मेन बेस है हमारे खाने का, वो कार्बोहाइड्रेट्स है ना। रोटी चावल हर किसी के खाने में होता है, अलोंग विद दाल सब्जी चेंज ये सब होती रहेगी, लेकिन रोटी या राइस तो होता ही होता है इन एनी फॉर्म, चाहे वो खिचड़ी के फॉर्म में हो, चाहे वो डोसा के फॉर्म में, मतलब फॉर्म्स बदल सकते हैं, बट होता ही होता है। सो दे आर मेनली आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो जितना भी अनाज सीरियल होता है, अनाज, दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी हमारी ये स्वीट चीजें लाइक शुगर हो गया, जैगरी हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारे जितने भी है हमारे फ्रूट्स ऑल्सो हैव कार्बोहाइड्रेट्स, बट द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डिफरेंट, है ना। सो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज हो गए। Now when we come on to the functions, अब functions of carbohydrate, जैसे मैंने कहा मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, एनर्जी देना। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज देता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज देता है, लेकिन फैट तभी कहते हैं ना कैलोरी डेंस है, कि 1 ग्राम फैट ही हमें 9 किलो कैलोरीज देता है। सो अगर फैट ज्यादा खाएंगे तो थोड़े अमाउंट में ही और ज्यादा कैलोरीज मिल रही है हमें। सो द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू गिव एनर्जी। द सेकेंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का मतलब ये है, अब जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, प्रोटीन हमें चाहिए फॉर बॉडी बिल्डिंग, है ना। मेन फंक्शन तो यही है ना कि जो भी रिपेयर और बॉडी बिल्डिंग के लिए सेल्स या बॉडी को रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन चाहिए है। बट why is it said that we should have balanced meal? Balanced meal खाना इसलिए जरूरी है कि supposedly हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खा रहे, फैट भी बहुत कम है, तो फिर क्या होगा, अब बॉडी को तो काम करना है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए है, ब्रेन को फंक्शन करना है, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट यूजिंग द प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स बेचारे जो इनका मेन काम है कि बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर करना, वो ना करके वो एनर्जी देने लग जाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होंगे, राइट। सो जो मेन काम ना छोड़ के वो एक सेकेंडरी वर्क कर रहे हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स यही, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो देन कार्बोहाइड्रेट्स विल बी यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन्स विल डू देयर ओन पार्ट। मतलब जो प्रोटीन्स का काम है वो अपना ही काम करेंगे, वो अपना बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारा एनर्जी देगा। सो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का ये मतलब है कि इफ आई एम हैविंग सफिशिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं ओके प्रोटीन आई स्पेयर यू, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम अपना काम करो, तुम मेरा काम मत करो, मैं अपना काम खुद करूंगा, और तुम अपना काम अपना बॉडी बिल्डिंग का काम करो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन मीन्स, दैट इफ यू हैविंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर देयर ओन फंक्शन, दैट इज बॉडी बिल्डिंग। फिर प्रोटीन्स हमारे एनर्जी के लिए नहीं यूज होंगे, जो उनका काम है वो वही करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स दे स्पेयर द प्रोटीन्स, ओके। देन इज फैट यूटिलाइजेशन और एनहांसिंग फ्लेवर। फैट यूटिलाइजेशन हियर मीन्स कि ऑब्वियस, जैसे मैंने कहा था, हमारी मेन जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं हमारे, ठीक है, हमें वो चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं तो फिर फैट यूज होगा, फैट भी अगर बहुत लो होगा तो फिर हमारा प्रोटीन यूज होने लग जाता है। सो दिस कार्बोहाइड्रेट्स अगर ये भी एडिक्वेट अमाउंट में है तो
जो फैट्स है, फैट्स भी अपना काम करेंगे, फैट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगी। जैसे प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होता है, somewhat similar to that. The fat can be used properly for their own function and not for just giving energy, क्योंकि मेन एनर्जी का फंक्शन, मेन एनर्जी हमें कार्ब्स से मिलती है सबसे पहले। एनहांसिंग फ्लेवर मीन्स ऑब्वियसली ऑल दिस शुगर, दिस लाइक आई सेड, शुगर, जैगरी, हनी, इन सब में कार्ब्स होते हैं। एंड here just normally just a general discussion, I would like to say many people think that शुगर, हम वाइट शुगर नहीं लेके हम हनी जैगरी ले रहे हैं तो इसका मतलब जितना भी ले लो। लेट मी टेल यू, हनी जैगरी शुगर है तो सब कार्बोहाइड्रेट्स ही, एंड वी नो दैट 1 gram provides 4 kilocalories, right? So calorie content wise they're almost the same, but yes, honey and jaggery have additional features, additional benefits as compared to processed sugar. But जब आप चीनी ले रहे हो, जैगरी ले रहे हो या हनी ले रहे हो, कैलोरी आपको सब में से सेम ही मिल रही है, बिकॉज दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, एंड यस वी डू एड देम टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ फ्लेवर। अब लड्डू खा रहे हो और लड्डू में चीनी भी ना हो, गुड़ भी ना हो, हनी भी ना हो, कुछ भी नहीं, तो वो बिल्कुल फीका लड्डू भी लड्डू कहाँ कहलाएगा। सो these carbs they help in flavor. अब फ्रूट भी अगर कार्ब्स है तो अगर वो भी आप डालते हो, उसमें सम अमाउंट ऑफ कार्ब्स होता है फ्रूट में, तो that also helps to enhance the flavor. Then the other last function of carbohydrates is the digestive action. Now see, there are different multiple types of carbohydrates. और फाइबर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। लेकिन फाइबर इज ऑल्सो इट्स बेसिकली 2 types of fiber. One is our soluble fiber, the other one is our insoluble fiber. Okay, this is just again for information. I'd like to mention this to you, that I'm typing out in the chat box also. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ठीक है। अब इनसॉल्युबल फाइबर अब क्या करता है, मेन फाइबर का क्या रोल होता है, इट गिव्स बल्क, भारीपन देता है, बल्क टू आवर फूड, सो इट हेल्प्स टू पुश द फूड डाउन। अब का फाइबर हमारी बॉडी ज़्यादा फाइबर को, स्पेशली इनसॉल्युबल फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइबर को बॉडी से निकाला जाता है in the form of feces. So insoluble fiber, what it does is when we are having fiber, so it pushes the food down, तभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिनको हो, उनको अपने खाने में फाइबर ज़्यादा रखने चाहिए। योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, योर ऑल योर अदर वेजिटेबल्स, योर होल ग्रेन्स एंड ऑल, rather than having refined grain. whole grain होता है हमारा, जैसे हमारे जितने भी whole millets हो गए या साबुत हो गई, right? Or maybe your whole wheat and all, rather than having maida and suji, because maida is completely simple carbohydrate हो जाता है, वो उसमें fiber इतना नहीं होता है। So if you're having more of fiber helps to prevent this problem of constipation because it adds bulk to the diet, to the food. तो इसलिए it pushes the food down. तो it becomes easier, to pass feces. It becomes easier to pass stool. तो इसलिए फाइबर का ये मेन रोल होता है। Also here just an additional information I'd like to give you, जैसे मैंने बताया insoluble, soluble fiber होता है। Soluble fiber लेते तो soluble fiber, it is shown to, many studies are there which shows that if you're having soluble fiber, then that, it helps to bind the cholesterol if there is excess of cholesterol, and it helps to bind with the cholesterol and it helps in its removal. तो इसलिए people with high cholesterol problems and all, तभी कहते हैं have more of vegetables, have fruits, तो आप अपना fiber intake बढ़ाओ। So this was about carbohydrates. Now, like sources I've already told you, your sugar, jaggery, honey, they are your pure carbohydrates. Carbs से भरे होते हैं ये. But yes, some additional micronutrients are there in jaggery and honey which are not there in sugar. तो white sugar, processed sugar तो बिल्कुल ही avoid करना चाहिए। उसके बाद हमारे जैसे बताया सीरियल्स मेन सोर्स आते हैं जिसमें हमारा सारा अनाज आता है, हमारे राइस आ गया, वीट प्रोडक्ट्स हो गए, ऑल योर मिलेट्स एंड ऑल, राइट। रूट्स एंड ट्यूबर्स हमारे आलू, अरबी, पोटैटो हो गया, अरबी हो गया, हमारा कोलोकेसिया होता है,
स्वीट पोटैटो शकरकंदी जिसको हम कहते हैं, बीट रूट हो गया हमारा जिसको हम चुकंदर कहते हैं, these are root vegetables, so they have carbs in them, but yes carbs के साथ दूसरे nutrients भी होते हैं, but these two have a lot of carbs, main component carbohydrates होता है, and some fruits specifically bananas, mangoes and all, जैसे आपका चीकू होता है ना, they are very carb rich। अब अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, एनर्जी देना, बट अगर हम वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं, पर अगर हम उसको एनर्जी में, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है ग्लूकोज में, ठीक है, अब वो ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी उसको यूज करेगी टू फॉर एनर्जी, बट अगर हम इतना काम ही नहीं कर रहे हैं, वो ग्लूकोज खा, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, बट वो ग्लूकोज यूज तो हो नहीं पा रहा, सो देन व्हाट विल हैपन, ऑल द एक्स्ट्रा वन विल गेट कन्वर्टेड टू फैट इन द बॉडी एंड इट विल गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, जिसकी वजह से ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, मोटापा बढ़ेगा, और उस वजह से जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, कार्डियोवैस्कुलर को मतलब हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कैन बी कैंसर कॉजिंग, इट कैन कॉज स्लीप इश्यूज, ये सब ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। So this will happen if you're having excess carbohydrates. But at the same time, अगर हम कम कार्ब्स ले रहे हैं, हम लो कार्ब डाइट बिल्कुल ले रहे हैं, प्लस और भी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, हमारे प्रोटीन एंड ऑल आर फैट्स एंड ऑल, so what will happen, we will feel very tired and lethargic, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स का मेन रोल होता है टू गिव एनर्जी, सो वही कम होगी तो फिर लेस एनर्जी इन द बॉडी, we will feel tired, और उस वजह से gradually it can lead to underweight, undernutrition. So this was about carbohydrates. Then we come on to fat. So we are going to talk about each macronutrient, उसका function क्या है, उसकी deficiency से क्या होता है, और उसकी excess से क्या होता है, ठीक है। अब फैट्स पर आ गए। अब फैट्स के फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शन जैसे बताया, फैट 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज देता है, तो फैट काफी डेंस सोर्स हुआ हमारी एनर्जी गिविंग के लिए। दूसरा, फैट इट हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ योर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब जैसे मैंने बताया था, वेट आई विल जस्ट टाइप आउट इन द चैट बॉक्स, नाउ वी हैव विटामिन्स, जैसे बताया था विटामिन्स में, एक मिनट, हमारा होता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ठीक है। अब इसमें कुछ होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हमारा एंड सी, ओके, आई एम टाइपिंग आउट इन द चैट बॉक्स एज वेल, एंड हमारे फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि टू यूज ए, डी, ई, के आवर बॉडी नीड्स फैट, एंड विटामिन बी और सी, तभी विटामिन बी और सी का ओवरडोजिंग में इतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि कभी थोड़ा अगर हाई भी हो जाता है तो वो यूरिन में वाटर, इफ हाइड्रेशन लेवल इज गुड, पानी अगर पूरा पी रहे हैं तो समटाइम्स इट गेट्स रिमूव थ्रू द यूरिन, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, बट ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल है, तो इनका अगर बहुत एक्सेस हो जाए तो ही लिवर में स्टोर हो जाते हैं और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल if you're using supplements of these fat soluble vitamins. So these fat soluble vitamins, so fat हमें चाहिए होता है कि ये fat soluble vitamins हमारी body इसको properly use कर सके, उसके लिए we do need some amount of fat in the diet. Then fat obviously it helps in insulation, protection, palatability, satiety value. अब पैलेटेबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब खाने को पैलेटेबल बनाना, टेस्टी बनाना। अब अगर मैं तुम्हें एक तरफ बेक्ड समोसा दूं और एक तरफ फ्राइड समोसा दूं, तो फ्राइड समोसे का टेस्ट कितना अच्छा लगेगा, बेक्ड समोसा लगेगा अरे ये भी कोई खाने की चीज है, बेक्ड कौन खाता है। बेक्ड कटलेट दो और फ्राइड कटलेट दो, कितना फर्क है, राइट। सो फैट का मेन रोल है टू मेक द फूड टेस्टी,
दूसरा फैट गिव्स सटाइटी वैल्यू, वो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, हाँ मेरा पेट भर गया है। अब अगर अब छोले रोटी खाओगे तो इतना हैवी नहीं लगेगा जितना छोले भटूरे खाने पे लगेगा, है ना, क्योंकि दैट्स कंप्लीटली फ्राइड। घर की अगर छोले आटे से ही बनाओगे, पूड़ी बनाओगे, एक रोटी बनाओगे, दोनों में भी आफ्टर हैविंग बोथ देयर विल बी अ डिफरेंस। तो छोले पूड़ी में पेट ज्यादा जल्दी, दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस विल बी देयर, राइट। और अगर कभी किसी दिन फ्राइड खा लो तो लगता है जैसे अगर सुबह छोले भटूरे खाए तो बहुत बार यू फील फुल, हाफ ऑफ द डे यू फील कि यू आर सो फुल कि पेट भरा हुआ, इतना हैवीनेस होती है, बिकॉज fat takes longer time to digest, and it gives a feeling of fullness very easily, very soon. Then it also helps in insulation and protection. Like I said, see, हमारी फैट, एक लेयर ऑफ फैट हमारे स्किन के अंदर है, ठीक है। और एक ऑल आर मेन ऑर्गन्स लाइक योर हार्ट, योर लिवर, योर किडनी, दे ऑल हैव अ लेयर ऑफ फैट सराउंडिंग देम, ठीक है। तो ये एक लेयर ऑफ फैट इसीलिए ताकि उससे किसी भी, वो प्रोटेक्ट करती, कोई भी शॉक, कोई भी इंजरी, उससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो वन लेयर ऑफ फैट, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लेयर ऑफ फैट इज ओके, इट इज गुड। बट जब ये ज्यादा हो जाती है कि हम इतना ज्यादा खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मूविंग अबाउट, हार्डली मूविंग अबाउट, सो देन व्हाट विल हैपन, then gradually this layer of fat increases and it pressurizes the organ, and that's when obesity and obesity से related diabetes, cardiovascular, heart problems ये आने लग जाती हैं। So but some amount of fat layer is there on our main organs। तो फैट का रोल क्या है, प्रोटेक्ट करना इन ऑर्गन्स को फ्रॉम एनी शॉक्स इन ऑल, ठीक है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू कीप अस वार्म। तो फैट के जो अंडर द लेयर, स्किन के नीचे जो फैट लेयर होती है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ फैट। व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्सेज, वी डिवाइड द सोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज। हम वेजिटेरियन सोर्सेज कहते हैं और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज कहते हैं। वेजिटेरियन मतलब जो भी हमें प्लांट फैट है, जितने जितने हमारे नट्स, सीड्स, ये सब है, ऑयल सीड्स, ये सब हमारे वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हो गए जैसे हमारा एग, एग में योक में फैट होता है, मिल्क में कितना फैट होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क में भी अगर आप फुल क्रीम लेते हो तो उसमें पूरा फैट होता है, डबल टोन या टोन में थोड़ा कम फैट होता है। सो ऑल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में हमारा घी, बटर, सो दीज कम फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्सेज, तो इनको हम सॉरी दीज कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, तो इनको हम एनिमल फैट कहते हैं। So these are the two sources. Now, what will happen if you'll have too much of fat? Obviously, it will lead to overweight, obesity, and then related issues. But if you're having less of fat in the diet, then yes, it can lead to being underweight, weight loss, again tiredness, क्योंकि फैट भी एनर्जी देता है। और अगर फैट बिल्कुल नहीं होगा डाइट में, अब बहुत बहुत कम होगा, तो आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो भी ठीक तरह से नहीं यूज हो पाएंगे। सो इट कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ योर विटामिन ए, डी, ई, के, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, राइट। सो दिस वाज अबाउट, वी डिस्कस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, वी डिस्कस्ड फैट्स, क्योंकि हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम किस पे आ गए, अपने प्रोटीन्स पे जो बचा, है ना। हमारा मेन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो आफ्टर carbohydrate fat we have proteins, and like I've already mentioned, protein is required for growth, it is required for maintenance, right। मेंटेनेंस मतलब ग्रोथ, ऑब्वियसली छोटे से हम बड़े हो रहे हैं, हमारे हाथ पैर, लिम्स, बॉडी का साइज बढ़ रहा है, टिश्यू नए ग्रो हो रहे हैं। मेंटेनेंस मतलब कुछ, ऑब्वियसली सम सेल्स आर डाइंग, न्यू आर बीइंग फॉर्म्ड, राइट। सो दैट इज योर मेंटेनेंस। नाउ ऑब्वियसली जब ग्रोथ पीरियड ज्यादा होगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन ज्यादा होगा, तभी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन अ स्मॉल चाइल्ड बचपन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अडल्ट, क्योंकि अडल्टहुड में तो हमने मेंटेनेंस करनी है ना, कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही है। पर देर आर सर्टन कंडीशंस, लाइक योर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन प्रेगनेंसी में वी नीड मोर प्रोटीन बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग, जो हमारा फीटस है मदर की बॉडी के अंदर, है ना, तो वो ग्रोथ फेज हो गया। लैक्टेशन में ज्यादा प्रोटीन चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली फॉर प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क,
क्योंकि द इन्फेंट जो न्यू बॉर्न है वो मदर पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ना, फ्रॉम द मदर्स मिल्क फॉर न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे के ग्रोथ के लिए चाहिए हैं। तो इसीलिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट ऑल द लाइफ स्टेजेस, बट कुछ लाइफ स्टेजेस में ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू दी अदर्स। देन protein is, yes, it is a source of energy. Like I said, 1 gram gives 4 kilocalories. प्रोटीन भी एनर्जी देता है, दो उसका मेन प्राइमरी फंक्शन एनर्जी गिविंग नहीं है, लेकिन प्रोटीन भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन फ्रॉम द प्रोटीन। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंजाइम्स हैं जो बॉडी में रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, they are also protein in nature, or your hormones, they are also protein in nature, right? So we need proteins for all the body processes that takes place. हमारे antibodies जो हैं वो भी protein ही है in nature. Then comes our sources. Again, proteins में we have a vegetarian protein source, we have animal protein source. Animal वो हो गए जो सारे एनिमल प्रोटीन सोर्सेज जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे हमारा चिकन, फिश, एग्स, मिल्क एंड ऑल आर मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड देन वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारे बेसिकली आ गए हमारे पल्सेस, राइट, जितनी भी हमारी दालें होती हैं, और साथ साथ हमारा आ गया जितने भी हमारे नट्स होते हैं, ऑल आर नट्स, दीज आमंड, कैशू नट्स, पीनट्स, योर वाइट तिल हो गया, मतलब सेसमे सीड्स, नट्स एंड सीड्स, दे हैव प्रोटीन। नट्स एंड सीड्स में ऑब्वियसली फैट भी होता है, बट साथ में प्रोटीन भी देते हैं हमें, राइट। एंड हियर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग दैट इज नोन एज म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। म्यूचुअल, मैं स्पेलिंग्स यहाँ चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन में क्या होता है, सीरियल पल्स कंबाइन करते हैं हम। इसका ये मतलब होता है, सी आर प्रोटीन्स, okay, simultaneously I'm typing out in the chat box as well. Proteins are made up of amino acids. Okay, now again imagine a house. घर हमारा प्रोटीन हो गया। घर किससे बनता है, छोटी छोटी ब्रिक्स से, है ना। वो ब्रिक्स हमारी अमाइनो एसिड हो गई, ठीक है। अब क्या है, अमाइनो एसिड की ब्रिक्स भी अलग अलग, बहुत अलग अलग होती हैं, किसी का कलर डिफरेंस होगा, किसी कुछ एज से टूटी होगी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स दैट मेक अप अ हाउस, एंड सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट मेक अप योर प्रोटीन। नाउ व्हाट इज happening is, now cereals, wait, I will, cereals they lack an amino acid, मतलब cereals में एक अमाइनो एसिड मिसिंग होता है। कौन सा अमाइनो एसिड, जिसको हम लाइसीन कहते हैं, ठीक है। और पल्सेस, जितनी भी हमारे दालें होती हैं, पल्सेस दे लैक मिथ्योनिन। Just a moment, I'm typing out. Yeah. So मैंने चैट बॉक्स में दोनों के स्पेलिंग्स और वो लिख दिए हैं। So cereals they lack an amino acid lysine and pulses they lack methionine. अब सीरियल्स में जो लाइसिन मिसिंग होता है, सीरियल्स मतलब हमारे अनाज सारा, रोटी, चावल, ये सब जो आ गया हमारा, सूजी, इन सब चीज़ों में। अब जो सीरियल्स में लैकिंग होता है लाइसिन, वो पल्सेस में होता है, पल्सेस में लाइसिन होता है, पर पल्सेस में मिथ्योनिन नहीं होता, जो सीरियल्स में होता है। सो मतलब एक की कमी दूसरा पूरी कर रहा है, अगर हम उसे कंबाइन करके लें तो तभी वी सेड इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियंस, राइट, तो इस केस में हु आर बेसिकली हैविंग सीरियल पल्सेस, तो वी से वी शुड ऑलवेज हैव अ सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन, and this combination of cereal and pulse we call it as mutual supplementation. So वैसे तो we are blessed कि हमारी इंडियन डाइट्स है ही ऐसी, हम खिचड़ी खाते हैं, दाल के साथ चावल खाते हैं। आप अगर छोले के साथ भटूरा खा रहे हो, आप डोसा के साथ इडली सांबर खा रहे हो, या कोई दाल ले रहे हो, राइट। सो एनीवेज वी आर फॉलोइंग अ सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन, and at times we can even add
if you're having some cereal and all, अगर हम उसको किसी मिल्क प्रोडक्ट से ऐड कर रहे हैं, right, so that also improves the quality of your plant protein. So when we talk about vegetarian sources, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम कहते हैं क्वालिटी क्यों एक कंसर्न भी है, वो इसीलिए है क्योंकि सीरियल्स में अमाइनो एसिड मिसिंग होता है और पल्सेस में एक दूसरा मिसिंग होता है, तो जब हम उन्हें कंबाइन करके खाते हैं, एक की कमी दूसरा पूरी कर देता है, तो दे म्यूचुअली एक साथ एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं. दैट इज हाउ वी कैन इम्प्रूव द प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियंस. So when we talk about the excess or the deficiency, now protein का जो deficiency, normally deficiency is something that everyone is worried about. I don't know how, if you even in today's world, if you learn, if you see or if you read social media and all, तो उस पर तो हर जगह कह रहे हैं कि प्रोटीन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, तो मोस्टली हम प्रोटीन्स की कमी ही सुनते हैं. And yes, to some extent it is very common, but it depends from person to person. So when we say, when protein deficiency की जब बात करते हैं, so that leads to a condition or a problem known as PEM, protein energy malnutrition, और PEM का एक फॉर्म है क्वाशियोकर. ठीक है, सो PEM का अभी ये आगे भी हम करेंगे. क्वाशियोकर है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ पीएम. पीएम के दो फॉर्म्स है, एक क्वाशियोकर, एक मरासमस. ठीक है, ये दो फॉर्म्स होते हैं, बट मेनली जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, वो कौन सा फॉर्म होता है हमारा, वो हमारा क्वाशियोकर होता है. ठीक है, सो अगे अब सो दिस इज बेसिकली नाउ व्हाट हैपेंस इन क्वाशियोकर इज ऑब्वियसली प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो उसमें क्या होगा, अब अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपकी इम्यूनिटी लेवल्स कम होंगे, मतलब जब बहुत बार हम जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं, राइट, मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस होगा, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन क्यों चाहिए, हमें हमारी एंटीबॉडीज के लिए चाहिए, विच आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, राइट. सो उसके अलावा बहुत बार हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शनिंग थोड़ी that gets deranged, that gets affected. So बहुत बार एडीमा होता है. एडीमा मतलब स्वेलिंग या वाटर रिटेंशन, कि बॉडी में क्या होती है, स्वेलिंग, पानी भर जाना. ठीक है, सो वो जिसको हम एडीमा कहते हैं. क्वाशियोकर में क्या होता है, बहुत बार आपके हेयर चेंजेस होते हैं, जो हेयर होते हैं ना वो बिल्कुल रेडिश ब्राउनिश हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ एडीमा व्हाट हैपेंस इज पॉट बेली कहते हैं, मतलब क्या होता है, पानी भरने की वजह से पेट थोड़ा बाहर की तरफ लगता है, बट वो एक्चुअली फैट की वजह से नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड मेनी टाइम्स देयर इज वाटर रिटेंशन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी में पानी जो भरने लग जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैनी आई डोंट नो इफ यू जस्ट गो वॉक बाय द रोड एंड ऑल एट टाइम्स, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इफ यू सी बाय द रोड साइड. I'm not saying everybody has PEM, kwashiorkor and all, but many times if you see, many children who hardly get any food to eat, not even proteins तो obviously नहीं मिल रहे हैं, तो sometimes pot belly हो जाती है. मतलब belly मतलब stomach. ये I do have a picture, maybe in the next class, there are certain slides मेरे पास है कुछ, maybe next class but I'll show it to you. एक बार दिखाऊंगी. So this so I was saying that pot belly मतलब जो belly, जो stomach है ना, वो ऐसा फूला हुआ लगता है. वो बच्चा एक्चुअली मोटा नहीं है, वो बस ये है बिकॉज ऑफ क्वाशियोकर वाटर रिटेंशन है बॉडी में. दैट इज एक्चुअली द वाटर in the body, not actually the fat. And many times also, if you notice the hair, they become reddish brown, dry, brittle, because eventually your hair are also protein in nature, right? And skin changes भी होने लग जाते हैं, because skin also requires protein for regeneration. तो इसीलिए these are some of the changes that you see when we talk about kwashiorkor. ठीक है, और ऑब्वियसली अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन को प्रॉपर प्रोटीन नहीं दोगे तो बच्चे की ग्रोथ पे सबसे पहला असर बच्चे की ग्रोथ पे पड़ेगा. द फीटस, द स्मॉल इन्फेंट विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली.
सो एंड समटाइम्स अगर मदर की डाइट ठीक नहीं हो प्रेगनेंसी में, तो इट कैन लीड टू, अगर लेस प्रोटीन ग्रोथ कम होगी तो इट कैन लीड टू लो बर्थ वेट। बच्चे का जो नॉर्मल वजन से ना होके वो कम वेट का पैदा होगा, तो लो बर्थ वेट हो सकता है। So then the last nutrient that we'll be talking about is your water. Now like I said, water एक चीज है जो हम सबसे ज्यादा बहुत बार निग्लेक्ट कर लेते हैं। हम खाने पे पूरा फोकस करेंगे, एनर्जी प्रोटीन मेन, बट पानी पे इतना फोकस नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू नो just generally, let's just, how many of you actually have 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर? मतलब यू मेक श्योर कि हाँ 2 से 3 लीटर तो मैं पीऊँ ही पीऊँ। ऐसा कोई जिसके बाद थम्स अप? ओह दैट्स नाइस। डॉक्टर गौरी, वंडरफुल। निकिता, oh we have few hands, nice to see that. बट ये हमारा जो रेशियो है ये और बढ़ना चाहिए है। जितने हम हैं अभी 30, उसमें से हैंड रेस कुछ ही हुए हैं। सो बट एनीवेज, it's still nice to see, and yes, since summers are approaching, so dehydration एक बहुत common problem है होना, and now that we know it helps to maintain the body temperature, so we should make a conscious effort। हमें ये बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना पानी का इंटेक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर तो रखें ही रखें, राइट? बिकॉज यस, वाटर इज, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पानी है। 75%, 70 से 75% हमारा पानी ही है बॉडी में। सो लाइक आई सेड, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इट इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड लिक्विड है, पानी है जो सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करता है। नाउ इट हेल्प्स टू एलिमिनेट या रिमूव या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जैसे यूरिन हम हमारी बॉडी से निकलता है तो सारे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, है ना? उसके बाद जैसे मैंने बताया था, जितने भी हमारे सेल्स हैं, सेल्स हमारे दे हैव वाटर इन देम, राइट? जहाँ डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस होते हैं। So these also, water also helps to prevent from external shocks and injuries. See, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में ये टिश्यूज का मतलब ये है, हमारी बॉडी में अब द स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल होता है। अब एक सेल जब कंबाइन करता है तो वो एक टाइप का टिश्यू बनाता है। अब अलग अलग टिश्यूज कंबाइन करके एक ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव ये सिस्टम हो गया, सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से। फॉर एग्जाम्पल स्टमक हो गया हमारा, हमारा माउथ हो गया, हमारा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, राइट? सो दीज आर, आई हैव जस्ट नेम्ड अ फ्यू। सो दीज आर आर ऑर्गन्स। सो एक सिस्टम है, सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से बना है। ये ऑर्गन, जब स्टमक एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज से बना है, माउथ एक सेट ऑफ टिश्यूज से बना है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक सेट ऑफ टिश्यूज से बना है ना? सो और ये टिश्यूज अब किससे बने हैं, सेल्स से। सो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है, वो है हमारा सेल्स। और इन सेल्स के अंदर वी डू हैव वाटर इन देम। So water is very, very important, and we know that if we do not take enough water, it can lead to dehydration. Overhydration is something that we've hardly heard of, right? But yes, there are certain conditions where water intake को भी हमें सोचना पड़ता है या हमें रेगुलेट करना पड़ता है। वो फिर अलग वो डिजीज कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो या किडनी इश्यूज हो, then that's a different issue. But yes, 2 to 3 liters is the minimum that we say that one should have, right? So what I'll do is I will stop here, क्योंकि इसके बाद I think आपका micronutrients है ना? So micronutrients are itself is not big, but उसमें काफी डिटेल, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है? So वो I would like to take up together rather than, because we have some amount of time left,
तो मैं अभी शुरू करके अभी खत्म नहीं हो पाएगा. I would take it up together and I will also try to show it through. I have a small presentation also with some pictures, so it will be easier उसके through समझना. So I shall stop here because now I would like to give time to any questions. कोई questions, कोई doubt, anything you want to say, ऐसा कुछ या जो नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ या जो आप चाहते हो फिर से समझाओ, anything? Ma'am, can I ask about assignment? If it is an assignment question, you can surely ask me about. In the sense, a general question, because they have not given the word limit. So if it is 3 marks, 2 marks, is there any word limit that is there, like 150 or 200, anything like that? You have to see, obviously, अब assignment में if it is a 3 or a 4 marker question, Okay. or maybe a 6 marker, then I would expect कि आप थोड़ा elaborate करके लिखो. That would be better because see, sometimes the problem is that if you have to sometimes अगर मुझे 20 marker का मुझे कोई पेपर बनाना है, so I want to give diverse questions so that it is also like a preparation for you. And it becomes very difficult to give all questions. If I give of 5 or 6 marks, तो मैं बड़े limited दे पाऊंगी, फटाफट से 20 मार्क बन जाएगा. पर अगर 5 के बजाय मैं उसको 4 दे दूं या कुछ, तो फिर आई एम एबल टू गिव यू मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सो दैट मेक्स यू अवेयर एंड प्रिपेयर आल्सो कि क्वेश्चंस कैसे बन के आ सकते हैं, है ना? ओके. नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ा बनेगा तो असाइनमेंट में मार्क्स कम होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बिकॉज वो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के साथ सब वो बड़ा ही हो रहा है. इवन इफ इट्स फॉर 2 or 3 marks, थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसके लिए कुछ तो. See, what is important is to write to the point. Yes, What correct. written, the quality should be good. ओके. ओके, नॉट अंडरस्टूड. जस्ट एक ही चीज को कभी कभार बहुत बार होते हैं, एक ही चीज को बार बार अलग अलग लैंग्वेज में पर एक ही चीज लिख रहे हो, वो दैट मेक्स नो सेंस. करेक्ट. हाँ. इट शुड बी वेल एक्सप्लेनेटरी. ओके. ओके, फाइन. इट शुड हैव कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट. Yes, and obviously for 1 or 2 marks you will not write 2 to 3 pages. वो तो obviously ज्यादा हो जाएगा. हाँ, ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू. Ma'am, PEM is protein, energy, malnutrition. malnutrition. Okay. मेरे पास इसकी स्लाइड भी है. मैं नेक्स्ट उसमें when I'll be doing micronutrient and their functions, no, I'll show you the slide of this. I have few pictures and anyways if you'll also अगर Google पे डालोगे भी आपको बहुत सारी pictures मिल जाएंगी. So it becomes easier to understand also at times when we see pictures. Right? Any other question? Any other doubt? Anything else you want to ask? So, ma'am, the questions which are written over here in between these chapters, in our exam, these kind of questions are going to come. See, I cannot say anything about the exam or the exam paper as such, but yes, these questions are very helpful. मतलब अगर आप ये क्वेश्चंस अब जैसे सपोजिटली अभी मैंने 2 या 3 ब्लॉक्स अगर अभी करे, so you can just go through these questions, right? And if you in case you have any doubt in any of the question कि इसका आंसर क्या होगा या ये क्या लिख मतलब कहाँ से इसका आंसर, वैसे तो आपके इसमें the books are beautifully made, everything is in very nice and crisp, nice language, simple language, so you can go through them. And yes, they will be very helpful. Okay. Even for your exam preparation, yes, they will be very helpful. तो आप एक बार आफ्टर एवरी सेशन आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस की, क्योंकि अगर आपने मुझे सुना है आपको एटलीस्ट इतना पता होगा कि हाँ ये कवर अप हुआ था, ये इस बारे में हमारे सेशन में बात हुई थी. सो देन यू श्योर वो एक आ जाता है, मतलब ये इसी पार्ट में से यहाँ से है ये क्वेश्चन का आंसर. So then it will help you to find out the answer as well. And if anyways you get stuck up, you can always ask in the next session. No problem. Okay. Any other question? Any other query?
Not such. That's okay. Query अगर बाद में भी आए तो you're most welcome to ask. Otherwise, if any of you want, so I'll maybe just I'll take a 5 minute break. I would like to you also to take a 5 minute break and you can go through the questions या कुछ अगर कुछ हो तो पूछ सकते हो आप. So I'll also be back in 5 minutes and you can uh, assignments ka I have no idea. You will have to get in touch with your regional center जहाँ से आप वो assignments. What I know of is that obviously assignments proper sheets में hand written आपको proper वो करके देनी है and उसमें last date submission होगा. So for assignments, I think you'll have to get in touch with your regional center only जहाँ से आप हो, so they can assist you better where to submit it. But yes, assignments, what I'm aware of is they have to be handwritten and spiral bind अच्छी तरह proper करके और अपना enrollment number attach करके सारी instructions उसमें दिया होगा आपकी. Attach the question paper also as well. And कहाँ submit करना है? I would suggest you please ask the your regional center. Right, उसमें I'll be helpful and I can assist you and guide you regarding the content. That I can assure you. But the administrative part and all, I won't be able to assist much on that. क्योंकि सब I think अलग-अलग centers हैं, so वो आपको देखना पड़ेगा. So you all can take 2-3 minutes or maybe 5 minutes. Just go through whatever I've discussed. Our questions, be you can just go through it, and if there is any doubt, I'll take up the doubts after 5 minutes. या अगर questions के भी कोई doubt है या CFN 1 से मतलब जो आज cover हुआ उससे related कोई assignments में doubt है, so you're most welcome to ask that. So I'll just give you 5 minutes. You can just go through it. एक बार recollect करो आज क्या क्या सुना, and then I'll take up the doubts. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome.
Yes, is everyone back? Yes. There is a query now. पहले तो PEM को ओके सी PEM इज नथिंग. नॉर्मली क्या होता है PEM में हम क्या इसका PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन. ठीक है. अब नॉर्मली क्या होता है PEM में PEM यूजुअली मेनली 2 टाइप्स का होता है. ठीक है. क्वाशियोकर एंड मरासमस. मैं चैट बॉक्स में भी टाइप करते जा रही हूँ सो दैट you're aware of the spellings and what I'm talking about. So usually अब मेनली हमारे खाने में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, मेनली तो that will lead to kwashiorkor. And if it is mainly your energy deficiency, so that mainly energy deficiency that leads to what is known as marasmus. शिखा आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लोगे, बीच में से डिस्टर्बेंस आ रही है. थैंक यू. सो सी marasmus में क्या है, एक imagine, and it is usually this PEM is seen mainly in children. Marasmus में what is happening is a child is not able to get basic food. यू नो एनर्जी डेफिशिएंसी मतलब बेसिक फूड ही नहीं मिल रहा है. प्रोटीन तो छोड़ो, कार्ब्स भी पूरे नहीं मिल रहे हैं, फैट्स भी. So that leads to marasmus where the child is very thin, very lean. बिल्कुल मतलब child हम कहते हैं marasmus में the face looks like monkey face या old man face. क्योंकि क्या है बॉडी में बिल्कुल फैट ही नहीं है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, अंडरवेट है, हाइट भी ग्रोथ वो भी प्रॉपर नहीं है. सो द चाइल्ड इज वेरी वेरी अंडर नरिश्ड एंड ओल्ड मैन फेस ऐसे लगता है जैसे फेस पे ना जैसे इफ यू सी ओल्ड पीपल और मंकी फेस, दैट मीन्स द फेस हैज ऑल जैसे झुर्रियां लाइंस पड़ जाती हैं because there is hardly any fat under the skin, so the child is just left to bones and just a layer of skin on the top. There is no fat in the body. तो जैसे होता है ना, सोचो एक स्केलेटन सा है, बोन्स है और बोन्स के ऊपर बस एक स्किन की कवरिंग है एंड देर आर लॉट ऑफ लाइन्स क्योंकि फैट नहीं है. सो दैट इज व्हाट मेनली व्हाट वी सी इन marasmus. But in case of kwashiorkor is mainly, obviously there will be some amount of energy deficiency, yes, but also mainly your protein deficiency. And उसमें क्या होता है, उसमें हम कहते हैं there is, अगर marasmus में हम कहते हैं ओल्ड मैन फेस या मंकी फेस, तो क्वाशियोकर में हम कहते हैं मून फेस. मतलब देखने में तो पूरा गोल लग रहा है ना, बट वो गोल फैट की वजह से नहीं है. वो गोल क्या है, मून फेस मतलब वो बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन है बॉडी में, अडीमा जिसको हम कहते हैं, OEDEMA. किसी किसी बुक्स में O से शुरू होता है और किसी किसी बुक्स में E से शुरू होता है. ठीक है. सो अडीमा बेसिकली मीन्स वाटर रिटेंशन, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी में, एक्सट्रीम प्रोटीन डेफिशिएंसी में ज़्यादा देखी जाती है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोकर एंड marasmus, एंड बोथ दीज आर फॉर्म ऑफ PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, जहाँ प्रोटीन की डेफिशिएंसी एंड एनर्जी की डेफिशिएंसी हो. आई होप इट्स मच क्लियरर नाउ. Okay, and next question I have, ma'am, let us know what to write in the assignment. What to write in the assignment? Assignment के जो questions हैं उसके answers आपको सारे आपका जो CFN का study material है उसमें से आराम से मिल जाएंगे आपको. And I'm also discussing everything. So you just have to answer what, I mean, it's a very vague question for me. What to write for the assignments? You have to write whatever is asked for. But हाँ, how much to write and all, उसका सारा आपके पास मटेरियल में. अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है which you're not able to understand, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इसमें क्या लिखना है, तो वो आप अभी जब भी जैसे काउंसलिंग सेशन है हमारे आगे भी, I'll be there, तो आप पूछ सकते हो उसमें. So your answers have to be to the point. They have content is very important to write. ये नहीं कि सिर्फ
आंखें बंद करके जो आपके पास मटेरियल है बुक से सिर्फ आंखें बंद करके कॉपी कर लिया, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स लेट मी टेल यू समटाइम्स इवन वी गेट असाइनमेंट, सो असाइनमेंट में पता है क्या लिखा होता है, नाउ दैट यू हैव लर्नड इन यूनिट 2, मतलब ऐसे कॉपी किया जाता है कि ये भी नहीं देखा जाता कि लिखा क्या हुआ है। सो प्लीज डोंट डू दैट। बुक में लिखा हुआ नाउ दैट यू हैव लर्नड इन यूनिट 2 एंड आंखें बंद करके कॉपी किया जा रहा है। प्लीज रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन राइट इट। इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन सो इन द असाइनमेंट, अगर CFN 1 के पार्ट से, तो वो आप जरूर पूछ सकते हो। Okay, so I assume there are no doubts as such for now, right? Wonderful. So you can go through the material and ask me next time. ठीक है, next I'll be starting off with your micronutrients, और हर एक micronutrients को लेंगे और उसका function देखेंगे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. This is a question that I've got in the chat box. Assignment के part B में SN1. Can you share the question? Which question are you talking about? क्योंकि assignment का part B practical question होता है, या तो अगर आप food preparation made in home on occasion, इसमें question में और डिटेल क्या दी हुई है? अगर आपको टैबुलेटेड फॉर्म में इसको आंसर करना है तो आप टैबुलेटेड फॉर्म में भी आंसर कर सकते हो, बट मुझे पूरा क्वेश्चन अगर आप बता सको या आप स्क्रीन शेयर कर सको अभी, तो देन मैं आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ मच बेटर वे। या तो आप क्वेश्चन टाइप आउट कर दो या स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन बता दो, then I can elaborate. Okay, there are 4 Yeah, I know that I'm aware of the 4 exercise. You must attend all the questions. Okay, got it.
Any 2 food preparations made in your home? Okay, so in the table given, yes, you have to tabulate it. Any to कोई भी 2 फूड प्रिपरेशंस आप लो और उसके कुकिंग मेथड्स आगे ना अभी हम कुकिंग मेथड्स पे भी आएंगे क्योंकि देयर आर डिफरेंट कुकिंग मेथड्स लाइक ड्राई हीट मेथड्स मॉइस्ट हीट मेथड्स है ना जैसे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग एक मॉइस्ट हीट मेथड है जिसमें हम वाटर यूज कर रहे हैं ठीक है रोस्टिंग ग्रिलिंग आ गया वो ड्राई हीट मेथड है तो आपको वो बताना है हम ये आगे आगे है ये कवर्ड कि नो कौन सा कुकिंग मेथड से वो बन रहा है एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू न्यूट्रिटिव कंटेंट ऑफ ईच ऑफ द प्रिपरेशन ऑब्वियसली you will have to talk about the carbs you will have to talk about the proteins you will have क्योंकि आगे अभी आपको कैलकुलेशन और वो भी थोड़ा बताएंगे कि वन जैसे अभी बताया कार्बोहाइड्रेट्स का तो एक्सचेंज सिस्टम ये आई थिंक CFN 2 में थोड़ा होता है तो उससे यू कैन कैलकुलेट द न्यूट्रिटिव क्वालिटी न्यूट्रिटिव वैल्यू सारी प्रिपरेशंस की कि कितना राइस यूज हो रहा है अगर आपने खीर बनाई तो कितना चावल है एक सर्विंग साइज में कितना चावल है कितना दूध है कितनी चीनी है ना तो उससे आप न्यूट्रिटिव वैल्यू निकाल सकते हो this we will be covering up in the later sessions so usse because obviously it's a step by step thing very difficult to answer in 2 minutes जब तक बेस नहीं आपको सारा समझाएंगे but yes this is how you will answer I can tell you that you take up any 2 food preparations उसका cooking methods जो that I think that's on CFN 1 only I'll be covering that of nutritive values की लिखनी है and there are 4 exercises in this part yeah so इसमें yes you can if there's a table given तो उस टेबल के आप हेड्स बता सकते हो मे बी नेम ऑफ द डिश होगा बिकॉज आई हैवंट सीन द असाइनमेंट्स येट सो वो किस मेथड से कुक हुआ है वो आपको लिखना है और उसके फिर आप न्यूट्रिटिव वैल्यू बताओगे एनर्जी प्रोटीन कार्ब्स फैट्स जो मेन होते हैं that you will be mentioning so you can tabulate this answer So I hope some idea you have got. अगर इसके आगे question है, so you can type out that or maybe unmute yourself. Okay, got it. ठीक है. So any 2 preparations that you feel which are made on any occasion in your house. Which you know the breakup कि क्या क्या content मतलब क्या क्या ingredients उसमें गए हैं so you take up any 2 food preparations okay no problem recording link see for the recording link I do not have the link and all and I'm not recording from my end so आपका maybe regional centers से आप you will have to get in contact they will only be providing you the link right any other doubts any other questions I don't see any other questions in the chat box okay fine then thank you so much everyone and I shall see you all in our हमारा next session जो है वो है let me check कब है तो next session also I will be taking up आपका CFN का which is on the 18th okay I have another question I was stuck in the last tab that is nutrients rich in ये nutrients rich I did not get you nutrients rich in अच्छा that particular are you talking about that particular food preparation is rich in which nutrient आप ये पूछ रहे हो okay
सी नाउ, अब अभी हमने कुछ सोर्सेस पढ़े, अब सपोजिटली मैं एग्जाम्पल ही खीर का, ठीक है, मैं खीर का एग्जाम्पल हूँ, अब खीर में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, आप सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पूछ रहे हैं ना आपसे। अब हमें पता है न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हमारा फैट्स, है ना, और विटामिन मिनरल्स। आज मैंने सिर्फ मैक्रोज ही डिटेल में लिए हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, नेक्स्ट उसमें विटामिन और मिनरल्स आई बी टेकिंग अप। सो उसमें अब देखो, अब अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिया खीर का, अब खीर में क्या क्या वो डले हैं फूड इंग्रेडिएंट्स, राइस डला है, मेरा मिल्क डला है, और मेरा अगर चीनी डली है, अगर मैंने नट्स भी डाले हैं। तो ना राइस कौन से न्यूट्रिएंट में रिच है, अब राइस जो है हमारा मेनली, अगर मैक्रोज की बात करें पहले, तो हमारे सीरियल में आता है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, राइट, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स है। राइस में जब हम नेक्स्ट क्लास में अगर हम विटामिन और मिनरल्स करेंगे, तो राइस में विटामिन में विटामिन B1 थायमिन होता है, ठीक है, और सम अमाउंट ऑफ, यस, दो वेरी लिटिल, हार्डली, बट सम अमाउंट ऑफ ऑब्वियसली यस प्रोटीन भी होता है। मिल्क, मिल्क हमारा एनिमल प्रोडक्ट हो गया, तो मिल्क में हमने पढ़ा था एनिमल प्रोटीन होता है, राइट। नाउ देयर आर other thing, now milk will also have, if it is full cream that you're using, it will also have fat in it, right। अभी जब हम माइक्रो पे जाएंगे तो ऑब्वियसली मिल्क में हमारा, we will come on to its sources and all of micronutrients also, so you will see milk has vitamin A also, रेटिनॉल के फॉर्म में, मिल्क में हमारा कैल्शियम भी होता है। तो ये सब न्यूट्रिएंट जब हम, अभी हमने सिर्फ मैक्रोज किए, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट पाएंगे तो आप और इलेबोरेट करके लिख पाओगे आंसर। अब अगर मैं शुगर की बात करूँ ना, शुगर वी नो इज प्योर कार्बोहाइड्रेट, तो शुगर में न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट नट्स, आई एम पुटिंग आमंड्स, आई एम पुटिंग कैश्यू नट, जो मेरा मतलब बादाम डाला मैंने और मैंने काजू डाला, तो अब मुझे पता है नट्स मेरे किस में रिच है, नट्स मेनली मेरे जो रिच हैं वो हमारे, अगर मैक्रोज की बात करूँ तो वो मेरे फैट्स में रिच है, वो मेरे प्रोटीन में रिच है ना। कुछ ऑब्वियसली नट्स में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे विटामिन ई होता है, राइट, कुछ हमारे वो भी होते हैं, कुछ हमारे मिनरल्स भी होते हैं उसमें, जैसे हमारा सम अमाउंट ऑफ, though very small, but yes, it has some amount of magnesium also, that is also mineral. So this is how you will answer, because if they're asking that nutrients it is rich in, so just see आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और वो इंग्रेडिएंट्स मेनली किस न्यूट्रिएंट में रिच है। तो अभी हमने मैक्रोस में करा, जब माइक्रो करेंगे लाइक आई सेड तो और आप बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे, बट मैक्रोस में यू हैव टू सी, राइस है तो राइस आपका सीरियल में, सो ऐसे करके you will be able to answer this question, because you just have to write the nutrients. I hope thoda clarity mila, right? Okay, most welcome. Great. Okay then, bye everyone, I'll just mute myself. Nikita. Nikita, you want to say something? You've raised your hand. In case you want to say something, please unmute yourself, or you can put it up in the chat box. Yes, and it was a nice session. Most welcome. I'm glad you were able to understand. समझ में आया, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा important है, आपको क्लैरिटी मिली। Okay.